Good morning and greetings to you all in the mighty name of our Lord and Savior Jesus Christ. A very warm welcome to our Harvest Church online Sunday service. हम उन लोगों का भी विशेष स्वागत करना चाहते हैं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं। आशा है आप अपनी ये सहभागिता हमारे साथ आगे भी जारी रखेंगे। Please like, share and subscribe our YouTube channel by pressing the subscribe button and also click on the bell icon for further notifications. आप अपने प्रार्थना निवेदन और गवाहियाँ कमेंट बॉक्स में हमें पोस्ट कर सकते हैं। Our prayer warriors would love to pray for you and you will testify the mighty works of Lord Jesus Christ in your lives. आप इस वीडियो को 2 और नए लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वे भी परमेश्वर की आशीषों को बहुतायत से पा सकें। So to begin with, one member of your family will come forward and say a word of prayer to invite the presence of Holy Spirit into your homes. So come, let's pray together. Good morning, all. Welcome to Harvest Church online service. We thank you, Lord, for making this day because this is the day that the Lord has made and we rejoice in it. As the scripture says, God is spirit, so we should worship in spirit. So let us sing a beautiful song which says, Burning in My Soul. There is power, here in this hour, we're all together, waiting here as one. There is power, here in this hour, we're all together, waiting here as one. Oh, hear the sound from heaven. Oh, almighty rushing rain. Oh, we're calling for revival. God, let your fire fall again. It's burning in my soul. It's burning in my soul.
in my soul. It's burning in my soul. There is power, power here in this hour, this hour. We're all together, together, waiting here as one. There is power, power here in this hour, this hour. We're all together, together, waiting here as one. Oh, hear the sound from heaven. Oh, the mighty rushing wind. Oh, we're calling for revival. God, let your fire fall again. It's burning in my soul. It's burning in my soul. Oh, it's burning in my soul. It's burning in my soul. Burning in my soul. It's burning in my soul. It's burning in my soul. It's burning in my soul. Yes, Lord. There is power, Jesus. We believe this morning as we worship you, Lord, that the Holy Spirit is going to fill us this morning as it happened on the Pentecost day, that they were filled with the Holy Ghost. Let the Holy Spirit fill us. Let the presence of Holy Spirit fill our hearts, mind, body and soul. We welcome you, Holy Spirit, in amongst us. Just lead us and fill us. Welcome, Holy Spirit. We await your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. We await your presence. Fill me with your power. Live inside of me. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit. We await your presence. Fill me with your power. Live inside of me. Welcome, Holy Spirit. Welcome, Holy Spirit.
believe as we worship you, Lord, this morning, the Holy Spirit is filling us. It is overflowing. It is overflowing. Church, just speak in tongues this morning. Let the Holy Spirit speak in you. Speak it, speak it, speak it, speak it, speak it, speak it. No one will going to keep quiet this morning. We are going to lift our voices high up. We are going to lift our voices high up. Oh, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, this is the Sunday which is filled with Holy Spirit. Oh, we welcome you, Holy Spirit. We welcome you, Holy Spirit. Oh, Rabba Shikayanda Si Rabayanda Si Karendo Rabba Shikaranda. अपने आप को Holy Spirit के समर्थ कर दे. उसको दे दे. उसे बोलने दे. Listen to the voice of Holy Spirit. वो क्या आपसे बोलना और बातचीत करना चाहता है. Just listen to it. बहने दे उस हवा को, छू ले हर एक दिल को, तेरा दर्शन हमें मिले, करते हैं प्रार्थना तुझसे. उस
मन को, तू बदल दे मेरे मन को, तू आशीष दे इस जीवन को। यस यस, पवित्र आत्मा आ, पवित्र आत्मा हमें भर दे। हाँ मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आज हमसे कुछ बोल रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ सिखला रहा है। जब हमने अपने आप को उसे दिया है तो उसने हमें अपनी सामर्थ से भर दिया है। आज उसने हमारे मन को बदल दिया है और इस जीवन को आशीष दी है। आने वाले दिनों में हम पवित्र आत्मा के कामों को हमारे जीवन के द्वारा देखने वाले हैं, यह हमारा विश्वास है। थैंक यू होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद हो। आने वाले वचन को हम पवित्र आत्मा के द्वारा सुनने वाले हैं, हमारा विश्वास है। आज तू हमारे पासबान के द्वारा जो वचन हमें दे रहा है, हम में से हर एक के जीवन के लिए वो वचन जरूरी है, ये हमारा विश्वास है। और आज हम तृप्त होके दूसरों को तृप्त करने वाले हैं, ये हमारा विश्वास है। इस आराधना के द्वारा आज हमने यीशु मसीह को जो आदर और सम्मान दिया है, उसने उसे ग्रहण किया है और हमारे जीवन को बदला है, ये हमारा विश्वास है। We thank you, Lord, for this wonderful morning. We surrender our hearts, mind, body, and soul unto you, Lord Jesus. With one accord, with one spirit, this morning, we had worshipped you, Lord Jesus. Thank you, Father, for listening to us this morning. We give you glory, honor, and praise. And we say, Amen and Amen. Praise the Lord, everybody. Thank you, Alvin and team, for the wonderful time of worship. I'm sure all of us have been greatly blessed by the worship today. God bless you all abundantly. God bless the choir abundantly. And before we go ahead into a time of giving our tithes and offering, I would like to say just one verse, and that is from the book of Philippians, chapter 4, verse 19. And my God shall supply all your need. Whatever your needs are, whatever your requirements are, God shall supply. And how shall God supply? God shall supply all your needs, all your requirements, according to the riches of His glory, according to the riches of His glory in Christ Jesus. He's a rich God. He's the richest person in the whole world. And all of you are His precious children. Whatever needs you have, whatever requirements you have, and we know that right now, most of the people are without jobs. They don't have jobs. They don't have finances. They have so many problems. They have so many needs. They have so many wants. But know for sure that our God, who is the maker of heaven and earth, who has created the entire universe, He shall supply. He will fulfill. He will give you everything that you need. You need to have just one thing, and that is trust. Trust God completely. Trust Him with all your heart. Trust Him with all your mind. Trust Him with all your soul. And the moment you start trusting Him, God starts opening the doors and windows of heaven and bless you. The key is trusting God, knowing that God shall supply all your needs according to His riches. And now shall we go ahead in time of giving our offering and tithe. Shall all of us take our tithes in our hand and believe, have faith, have trust, and let's pray. Let's close our eyes and pray right now for a miracle to take place. Father God, we come to the throne room of grace and mercy,
knowing fully well that you are the source. There is no other source, there is no other place, Almighty God, that we can run to. We run to you, trusting in you completely, that you are the one who is going to supply every need, every desire, every want of each and every person as they sow in your kingdom, willingly, cheerfully, with an open heart and mind. You will open the doors and windows of heaven, Almighty God. Thank you, Lord, for opening the doors and windows of heaven right now, reaching down every individual person, every home, every family, Almighty God, and blessing their storehouses, blessing their finances, blessing their job, blessing each and everything in their house, Almighty God. God, you're the greatest restorer. You are even blessing them with good health, blessing them with jobs, blessing them with finances, keeping their barns full, overflowing, because the riches and the supply is coming from heaven. Thank you, Lord, for everybody who looks to God. And God, when you see their faith, and when the faith arises, you bless them according to their faith, Almighty God. God, we thank you from the bottom of our heart that you are so loving, you are so caring, you are so affectionate, and you have heard a prayer right now, and you have done a miracle. You have removed the stumbling blocks, you have removed the rocks, you have removed everything that comes in the way of blessing. And Lord, a breakthrough has taken place right now in the name of Jesus Christ. In the powerful name of Jesus Christ, we give you all the glory, we give you all the praise, we give you all the honor. In Jesus' precious, valuable, matchless, and sweetest name we say, amen and amen. God bless you all abundantly. Have a blessed service. Have a blessed time. God bless you. Thank you. मैं तुझको पसंद हूँ, मैं तेरे दिल को ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद हूँ,
morning, Jai Masih, praise the Lord, hallelujah, what a great day the Lord has given to us. आज हार्वेस्ट चर्च के ये ऑनलाइन सर्विस में आपका स्वागत है। मेरा विश्वास है आप सुन करके बहुत आशीषित हो रहे हैं इन वचनों के द्वारा। जरूर डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड टू शेयर विथ योर लव्ड वंस सो दैट अदर्स कैन आल्सो बी ब्लेस्ड। Wow, what a wonderful time we had during praise and worship. God bless you, Alvin and team. सचमुच में हमारे choir बहुत मेहनत कर रहा है. You did a great job. इस बात को ध्यान में रखना कि ये हफ्ते में एक ही बार आपको मौका मिलता है कि कॉर्पोरेटली एज अ बॉडी ऑफ क्राइस्ट हम सब मिल करके परमेश्वर की आराधना स्तुति कर सकते हैं। इसलिए तैयार हो करके जैसे आप चर्च जा रहे हैं, आप सामने बैठे विथ योर होल फैमिली and just be lost in worshiping God. क्योंकि जब हम आराधना करते हैं परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आती है और हम प्रभु के वचन को हम सुन सकते हैं। आज भी हमारा विश्वास है परमेश्वर हमारे बीच में वचन के द्वारा बातचीत करेगा और अभी वो हमारे बीच में है। आज का संदेश बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस संदेश के बीच में एक स्मॉल स्किट हमारे लिमिटलेस यूथ ग्रुप ने एक बहुत अच्छा स्किट तैयार किया है, जरूर से वो भी आप देखिएगा ना। परमेश्वर के वचन सुनने को आते हैं भूख और प्यास के साथ में आए, अपने डायरी नोटबुक पेन लेकर बैठे एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू बी ग्रेटली ब्लेस्ड। टुडे इज पेंटिकॉस्ट संडे, पेंटिकॉस्ट संडे, और आज सर्मन का टाइटल है द होली स्पिरिट प्लान, द होली स्पिरिट प्लान ना। ये पेंटिकॉस्ट के संडे में परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा कलीसिया पर उंडेला था। पेंटिकॉस्ट ये शब्द जो ग्रीक में मीनिंग होता है, इट मीन्स द 50th डे। कुछ डीप मीनिंग नहीं है इसका। 50वां दिन ना। यीशु मसीह को जी उठ के अभी 50 दिन हुए थे। हम जानते हैं यीशु मसीह जब जी उठा था वो 40 दिन तक ना लोगों के बीच में घूमता फिरता था, दिखता था। एंड ऑन द 40th डे ही असेंडेड अप टू हेवन, स्वर्ग में वो उठा लिया गया। और वो 50वां दिन था, मतलब 10 दिन के बाद कलीसिया ये 120 लोग ऊपर वाले रूम में बैठ के प्रार्थना कर रहे थे जैसा यीशु मसीह ने उनको बोला था। और जब 50वां दिन आया पवित्र आत्मा उंडेला गया, हर एक पर उंडेला गया। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा दिस पेंटिकॉस्ट डे इज द बर्थडे ऑफ द न्यू टेस्टामेंट चर्च ना। ये हेवन के कैलेंडर में द डे ऑफ पेंटिकॉस्ट वाज अ ग्रेट इवेंट इन द न्यू टेस्टामेंट चर्च। ये कोई चांस, एक्सीडेंट, गलती, मिस्टेक, अनटाइमली इवेंट नहीं हो रहा था। इट वॉज अकॉर्डिंग टू द ग्रेट प्लान ऑफ गॉड ऑलमाइटी कि परमेश्वर पवित्र आत्मा, वही आत्मा जो क्रीस के ऊपर थी, वो उंडेलेगा पेंटिकॉस्ट के दिन में। इसलिए जब पवित्र आत्मा से भर गए तो पतरस उन 11 चेलों के साथ में खड़े होकर के उसने बताया जोएल भविष्यवक्ता की ये वाणी पूरी हो रही है। मैं आपके सामने में ये पढ़ना चाहता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हिंदी में आई वांट टू रिक्वेस्ट सिस्टर रीटा चौधरी, प्लीज़ आप हमारी मदद करेंगे इसको आप पढ़ने के लिए। हिंदी में पढ़ेंगे सीधा हम लोग। जोएल चैप्टर 2 वर्सेस 28 टू वर्स 32, पूरा आप पढ़े, ध्यान से सुने। उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा। तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। मैं आकाश में और पृथ्वी पर चमत्कार अर्थात लहू और आग और धुएं के खंभे दिखाऊंगा। यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधियारा होगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा। उस समय जो कोई यहोवा से प्रार्थना करेगा वह छुटकारा पाएगा और यहोवा के वचन के अनुसार सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में जिन बचे हुओं को यहोवा बुलाएगा वे उद्धार पाएंगे। यहाँ पर जोएल भविष्यवक्ता ने कहा परमेश्वर का ये वाणी है, अंत के दिनों में अपनी आत्मा, द स्पिरिट ऑफ गॉड, हर एक पर उंडेलूंगा ना। आपके बेटे बेटियों पर दे शैल प्रोफेसाई, ओल्ड मैन शैल ड्रीम ड्रीम्स, यंग शैल सी विजन्स ना। दास दासी पर उंडेलूंगा। वर्स 30 में हमने पढ़ा आई विल शो वंडर्स इन हेवन एंड अर्थ, ब्लड, फायर एंड पिलर्स ऑफ स्मोक। जगह जगह ये चिन्ह परमेश्वर दिखाएगा ना।
31 में the sun shall be turned into darkness, moon into blood before that great and terrible day of the Lord comes. वो अंतिम दिन परमेश्वर का आने से पहले परमेश्वर ये चिन्ह दिखाएगा। और 32 कलम बहुत एक्साइटिंग है, कहता है कि whosoever shall call on the name of the Lord will be delivered. For in Mount Zion and in Jerusalem shall be deliverance, as the Lord has said, and the remnant whom the Lord shall call. ना जो कोई यहोवा के नाम को पुकारेगा उसका उद्धार हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, आज हम इन दिनों में हम जी रहे हैं, ये चिन्ह हम देख रहे हमारे आंखों के आगे में। आपने देखा ना आजकल कैसे लोकस्ट ना वो टिड्डियां भी कैसे झुंड का झुंड खेतों को उजाड़ जा, कैसे कोरोना वायरस ने तो दुनिया को उथल पुथल करके रख दिया है ना। ये सब चिन्ह परमेश्वर बता रहा है बिफोर दैट ग्रेट एंड टेरेबल डे ऑफ द लॉर्ड, जब आएगा और कलीसिया को उठा लिया जाएगा और फिर तो इस दुनिया पर तबाही हो रहा है। परंतु परमेश्वर ने यह भी बताया है इस अंत के दिनों में अपनी आत्मा ख्रीस्त की आत्मा, गॉड का ये प्लानिंग था कि अंत के दिनों में स्पिरिट ऑफ गॉड को ऑर्डिनरी लोगों पर, सिंपल लोगों पर, इग्नोरेंट अनजान मैन एंड वुमेन, यंग एंड ओल्ड, ताकि उनका जीवन को बदल जाए और वे पराक्रमी काम, बड़े बड़े काम जो यीशु करता था वैसा वो कर सके। अभी देखिएगा, ये तो बहुत अच्छा हो गया होता अगर यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरता, वो आज भी हमारे बीच में रहता, आज भी भीड़ को चंगा करता, रोटी खिला देता और मुर्दे लाजर के समान जी भी उठाता। ये अच्छा होता, पर उसके लिए हम लोग सभी को मसीह मुलाकात यात्रा इसमें जाकर जेरूशलेम जाना पड़ता वहां पर और जीसस से प्रेयर कराना पड़ता। पर गॉड हैड गॉट अ बेटर प्लान। गॉड ने ये प्लानिंग में रखा है कि अपनी आत्मा, वही आत्मा जो क्रीस्त के ऊपर में थी, वो हरेक पर उंडेल देगा, ताकि वो भी वो काम कर सकेंगे जो क्रीस्त करता था। आज यीशु मसीह हमारे बीच में है ना, उसकी आत्मा हमारे बीच में है ना, इसलिए वही काम हो रहे जो यीशु मसीह था उन दिनों में जो काम होते थे। ये पेंटिकॉस्ट का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन था कलीसिया का ना। ये कलीसिया लौ लगाकर ऊपर वाली कोठरी में प्रार्थना कर रही थी और एकाएक सब पवित्र आत्मा से भर गए ना। अभी देखिएगा, ये डिसाइपल्स को जरूर एकाएक लगा होगा, सडनली द होली स्पिरिट वाज poured out, बट हेवन के कैलेंडर में इट वाज एज प्लान्ड। दिस डे वाज प्लान्ड मच बिफोर कि अपनी आत्मा में हरेक पर उंडेलूंगा। जैसे कि जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था ना, गैब्रियल स्वर्गदूत ने आके मैरी को वो पैगाम सुनाया। मैरी के लिए वो सडन इवेंट हो सकता, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है, और स्वर्गदूत ने आके पैगाम सुनाया था कि एक कुंवारी ना कैसे गर्भवती होगी, उसका नाम इमैनुअल रखेगा, और हम लोग उसको क्रिसमस डे बोल देता है ना। परंतु इन द हेवेंस कैलेंडर ये पूरा वेल कैलकुलेटेड टाइम टेबल के अनुसार यीशु का जन्म, जैसे पौलुस ने भी कह दिया, गलती 4:4 में कहता है, व्हेन द सेट time was fully come, God sent his son born of a woman under the law. जब समय पूरा हुआ, परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा था। परमेश्वर कुछ भी कर रहा है बाइबल में एक कैलेंडर को फॉलो कर रहा है, उसको हम लोग काइरोस टाइम बोलते, मतलब गॉड अपॉइंटेड टाइम बोलते। हमारा टाइम इसको क्रोनोस बोलते हैं। हमारा कैलेंडर दिन, महीना, हफ्ता, साल ये क्रोनोलॉजिकल है, परंतु परमेश्वर का एक अलग टाइम टेबल है ना। जैसे कि इज़राइलिट्स जब मिस्र में थे, पर एक टाइम टेबल के अनुसार परमेश्वर ने उनको छुड़ाया ना बंदगी में से निकाला जब 430 साल पूरे हुए। इवन एब्राहम का आना एक टाइम टेबल के अनुसार था। इवन मोसेस का बर्थ गॉड का एक टाइम टेबल था ना। मतलब बाइबल में जो सब कार्य हो रहा है ये सब परमेश्वर के टाइमिंग के अनुसार हो रहा है। बाइबल तो ये भी कहता है, ही मेड एवरीथिंग ब्यूटिफुल इन हिज टाइम। इन हिज टाइम उसने सब कुछ बहुत अति सुंदर और अच्छा बनाया अपने टाइम टेबल के अनुसार। उसी रीति से कलीसिया पर होली स्पिरिट उंडेला जाना ये स्वर्ग के कैलेंडर में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होगा। मैं सोचता हूं जैसे जब यीशु मसीह का जन्म हुआ था, पूरे स्वर्ग के स्वर्गदूत गीत गा रहे थे,
They were rejoicing, praising God ना कि अभी पृथ्वी पर पीस आ जाएगा, सैल्वेशन आ जाएगा, चंगाई आएगा, छुटकारा आएगा यीशु के जन्म होने के द्वारा। उसी रीति से जब पवित्र आत्मा उंडेल रहा है, मैं तो सोच रहा हूं स्वर्ग बहुत एक्साइटेड होगा कि अब ये काम जो यीशु कर रहा है ना, ये काम तो आम साधारण लोग करने वाले हैं ना। इसलिए जो काम यीशु मसीह करता, और हम जानते हैं यीशु मसीह ने तो ग्रेट एंड माइटी साइंस एंड वंडर्स किया, कैसे भीड़ उसके पीछे आती थी, सबको चंगा भी करता। मतलब कहने का मतलब ये हो गया, यीशु मसीह का जो लाइफ था वो तो एक ट्रेलर था मूवी का। जैसे पिक्चर का एक ट्रेलर होता है, असली मूवी तो अब चालू होने वाली है ना दोस्तों। अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है ना। अभी हम लोग बहुत जल्द एक छोटा सा स्किट हमारे जवानों लिमिटलेस ग्रुप ने तैयार किया है। उसका टाइटल है स्किट का ग्लूम इन द रूम, ग्लूम इन द रूम। इस स्किट में हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह का क्रूसिफिक्शन हुआ था ना, कुछ समय तक चेले बहुत डर गए थे ना। वो चेले शायद ये भी सोच रहे होंगे उनका करियर, उनका फ्यूचर सब बर्बाद हो गया जब यीशु मसीह क्रूस पर मर जाता है। वो सोचते ये भी होंगे इट वॉज अ ग्रेट मिस्टेक ना, और कैसे घबराहट और डर। आइए आगे ये छोटा सा स्किट हम देखेंगे। यीशु मसीह के मृत्यु के बाद कुछ चेले एक बंद कमरे में निराश हताश होकर चर्चा कर रहे थे कि अब उनका भविष्य कैसा होगा। वे अपने भविष्य के बारे में क्या सोच रहे हैं, आइए देखें। अरे मैं क्या बताऊं, मैं तो पूरा बर्बाद हो गया। 3.5 साल मेरे पूरे बर्बाद हो गए यीशु के पीछे जाके। मैंने अपनी ऊंची पद की नौकरी तक छोड़ दी, जिसमें मेरे नीचे बहुत से लोग मेरे लिए काम करते थे। समाज में मेरा बहुत बड़ा नाम था। अब मुझे वापस कुछ भी नहीं मिल पाएगा। अब मैं क्या करूं? मैं उसे क्यों नहीं बचा पाया, मैं उसे क्यों नहीं बचा पाया। मैं ही था जिसने कहा था कि मैं अंत तक उसके साथ रहूँगा और उसके लिए अपनी जान तक दे दूँगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की और तलवार उठाकर मलकुस पर हमला भी किया। आप लोग मेरे साथ अपनी तलवारें लेकर क्यों नहीं आए? हमने सभी सैनिकों को मार गिराया होता और हमारे यीशु को बचा लिया होता, पर अब काफ़ी देर हो चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है। अब मैं अपनी मछली के व्यापार के लिए वापस जा रहा हूँ। मुझे मेरा व्यापार बुला रहा है। मैं मेरे पिता को नौकरों और मछुआरों की नाव के साथ छोड़ आया हूँ। मेरा तो बहुत बड़ा कारोबार था, लेकिन मेरे पिता अभी भी वही काम करते हैं। मैं मेरे पिता के पास वापस जाऊँगा और एक सुरक्षित ज़िंदगी जीऊँगा। यीशु मसीह के साथ रहना बहुत खतरनाक है। ज़रा सोचो, लाजर का जिंदा होना, बर्तिमाई का चंगा होना, 5000 लोगों को खाना खिलाना, हमारे पीछे आती हुई बड़ी भीड़, ये सब तो एक यादें ही रह गई है। सब खत्म। मुझे उसके साथ काम करने में अच्छा लगता था, मेरे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। मैं अपने जीवन का क्या करूं? ये यहूदी लोग कितने कठोर और निर्दयी हैं। याद है जब यीशु का जन्म हुआ था, इन्हीं लोगों ने कितने छोटे छोटे बच्चों को मरवा डाला था, और अब इन्होंने तो यीशु को भी मार दिया। तुमने देखा किस तरह यीशु को 39 कोड़ों से मारा था। उसके सिर पर कांटों का मुकुट पहनाया था। बाप रे, ये यहूदी लोग तो बहुत ही बेरहम हैं। मुझे लगा कि पिलातुस कम से कम वो तो प्रभु यीशु की तरफदारी करेगा, पर वो भी यहूदियों से डर गया। तैयार हो जाओ भाइयों, अब तो हमारी बारी है। अब ये यहूदी लोग हमारी जान लिए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। हमारे मरने का समय आ गया है।
डरो मत, तुम्हें शांति मिले। मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। जो काम मैंने किए उससे भी बड़े बड़े काम तुम भी करोगे। चिंता मत करो, तुम्हारी सेवकाई के अच्छे दिन जल्द ही आएंगे। अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे चेलों। वाह, वंडरफुल, वेरी गुड ना। हमारे लिमिटलेस के यूथ ने बहुत अच्छा ये प्रेजेंटेशन किया विद अ मैसेज। अभी तो पिक्चर बाकी है। हालेलुया। पवित्र आत्मा उंडेला गया, पवित्र आत्मा उंडेला गया और चेले अद्भुत और बड़े बड़े पराक्रमी काम कर रहे थे ना। इस बातों को थोड़ा ध्यान दे। जरूर एक समय था जब ये चेले बहुत घबरा गए थे। ये यहूदियों के डर घुस गया था उनके अंदर में। हम तो जानते जब यीशु मसीह का जन्म भी हुआ था, हेरोद राजा ने तो वहां पर छोटे बच्चों को मरवा दिया। जोसेफ, मैरी और छोटे जीसस को लेकर इजिप्ट भागना भी पड़ा था। तो एक टेरर फैला हुआ था ना। उतना ही नहीं, जॉन 7:13 में भी कहता है, हाउ बाइट नो मैन स्पेक ओपनली ऑफ हिम फॉर द फियर ऑफ द जूस। फियर ऑफ द जूस, फियर ऑफ द जूस, ये यहूदियों का डर, ये हकीकत था, ये रियल था ना। जरूर उन दिनों में रोमन्स का राज जो चलता था, परंतु जूइश लोग स्पिरिचुअल क्लाइमेट को कंट्रोल रखते थे। वो नहीं चाहते थे कुछ और प्रचार यहां पर हो जाए, गॉस्पल यीशु मसीह कुछ चिन्ह चमत्कार करे ना। वो सब दबा के, डरा डरा करके, मारपीट करा करके इनको डरा के रखते थे ना। यीशु मसीह पर एक दो अटेम्प्ट भी पहले उन्होंने किया, पर यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया। ये चेले लोग में डर घुस गया था। क्यों ना क्रूसिफिक्शन के पहले इनकी आशा शायद पिलातुस पर होगी कि जरूर ये पिलातुस यीशु मसीह को बचा लेगा, छोड़ा लेगा, उसके पास तो अधिकार है बचाने का और पकड़ाने का। परंतु देखो ना, नथिंग हेल्प्ड, नथिंग हेल्प्ड ना। जब यीशु मसीह क्रूस पर मरता है, ये चेलों का भी होप्स आर शैटर्ड, देयर ड्रीम्स डाइड। यीशु मसीह क्रूस पर अपनी जान दे दिया है। ये चेले सोच रहे हैं एवरीथिंग हैज कम टू एन एंड ना। वो ये सोच रहे होंगे, वो क्या एरा ऑफ प्रीचिंग था जब वो प्रचार खुलेआम भीड़ के साथ में करता था ना। यीशु मसीह कैसे सड़क पर लोगों को चंगा करता था, भीड़ आती थी, यरदन में बैप्टिज्म होता था ना। कैसे मुर्दे लोग भी जीवित हो रहे, अंधे लोग भी चंगे हो रहे, कोढ़ी लोग भी शुद्ध होते जा रहे। क्या एक्साइटिंग डेज, एवरीडे होता होगा। पर नाउ एवरीथिंग इज फिनिश्ड, एवरीथिंग इज डेड एंड एवरीथिंग इज गॉन। यीशु मसीह तो अपने आप को नहीं बचा सक रहा है। पर सुनो ध्यान से ना, हेवन ने अभी अपना ट्रम्प कार्ड रिवील कर रहा है। मैं कहता हूं ना, अभी हेवन पवित्र आत्मा उंडेल कर रहा है। वो जानता है इनके घबराहट को कैसे दूर कर दे। एक सॉल्यूशन था ना हेवन के पास में ना। हेवन जानता था ये चेले बहुत डरपोक हैं, घबराने वाले हैं, डर जाएंगे, निराश हो जाएंगे। इनको कुछ डोज होना है, बोल्डनेस का, इंकरेजमेंट का, ऊपर का सामर्थ का जरूरत है। हेवन जानता था इनकी हालत ना, कि ये चेले कितने घबरा। और पतरस ने तो 3 दफे इनकार भी कर दिया था यीशु। थोमा तो बिलीव भी नहीं कर रहा था रेजरेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट पर। कुछ ऐसा ही हुआ था मूसा के साथ में। जब मूसा भी फर्स्ट टाइम जब फेरो के पास जब गया था, लेट माय पीपल गो ना, शायद बहुत आशा के साथ पूरा इजराइलाइट चार्ज्ड अप हो गए। आज ये दिन है, अब मूसा जाने वाला है ना, अब देखना छुटकारे का दिन वो मिलने वाला है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फेरो ने तो उल्टा ये कह दिया, हु इज दिस गॉड ऑफ द हिब्रूज। ये लोग आलसी है, लेजी है, काम नहीं करना चाहते हैं, और इन पर समस्या बढ़ा दी ना। इनसे डबल, इनसे वर्क मांग लिया इनके अंदर में। देखिए ना, ये सब इजरायली बहुत निराश हो गए। मोसेस भी डिस्करेज हो गया। वहां पर तो मूसा ने यह भी कह दिया 5 चैप्टर निर्गमन में, और उसका 22-23 कलम भी पढ़ दे। इंपॉर्टेंट है, जरूर से पढ़ेंगे। निर्गमन 5 चैप्टर 22-23 कलम।
तब मूसा ने यहोवा के पास लौटकर कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहाँ क्यों भेजा? जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए भेजा गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है और तूने अपनी प्रजा का कुछ भी छुटकारा नहीं किया। मोसेस भी डिस्करेज हो गया, लॉर्ड व्हाई डिड यू सेंड मी ना, यू नेवर इवन डिलीवर्ड योर पीपल। मतलब डिस्करेजमेंट, निराशा घुस गई मोसेस के अंदर भी। ही इज फ्रस्ट्रेटेड। मतलब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मोसेस जाएगा और फेरो बोलेगा, वाओ जाइए ना, इतना माइटी गॉड ना, ये जो रॉड को सरपेंट भी बना सकता है, वो वाटर को ब्लड में भी, माय गुडनेस, जरूर से जाए। ये कुछ ऐसे सपने लेकर के आए होंगे, पर नथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड। उल्टा ना विपत्ति, क्लेश, समस्या इनकी बढ़ गई थी ना। ये निराश भी हो गए। एल्डर्स भी इजराइलाइट्स के सब मूसा के विरोध बोलने लगे। परंतु देखो गॉड के पास प्लान था ना। एक्सोडस चैप्टर 7 सभी समय नहीं पढ़ने का, परंतु वहां पर प्रभु ने मोसेस को बोला, आई विल हार्डन फेरोज हार्ट दैट ही विल नॉट लेट यू गो। मैं उसके हृदय को सख्त कर दूंगा, कठोर कर दूंगा, नहीं ताकि मैं अपने बड़े हाथ को बढ़ाऊं। मिस्र को चिन्ह चमत्कार के साथ मारूंगा ताकि मिस्र जाने मैं ही यहोवा हूं, मैं ही पराक्रमी काम करता हूं, चिन्ह चमत्कार मैं करता हूं। गॉड चाहता था ये इजिप्ट में बड़े बड़े काम दिखाने को। उसी रीति से ना एक समय था डिसाइपल्स बहुत निराश हो गए थे, वो तो गिव अप करना चाहते थे मिनिस्ट्री को ना। परमेश्वर यह भी हालत जानता था कि चर्च ऐसे परिस्थिति के द्वारा गुजरने वाला है, इसलिए डे ऑफ पेंटिकॉस्ट रखा था परमेश्वर ने कि जब पवित्र आत्मा उंडेलेगा और इनका सब जीवन बदल जाएगा। गॉड के पास आंसर था ना, इसलिए ये 120 लोग, अभी सिर्फ 10 ही दिन हुए थे, ऊपर वाले कोठरी में प्रार्थना कर रहे थे। और पेंटिकॉस्ट का दिन जब 50वां दिन आया, पवित्र आत्मा उंडेला गया। अग्नि के जीभ हरेक के ऊपर में दिखाई पड़े। अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना, प्रोफेसी, एवरीवन, यंग एंड दी ओल्ड, मेन एंड वुमेन, सब 120 लोग। ये तो पहले कभी नहीं हुआ था। देखो होली स्पिरिट था ना ओल्ड टेस्टमेंट में भी था, बट ओनली फॉर द प्रॉफिट, प्रीस्ट एंड किंग्स के लिए था। परंतु जोएल ने जो भविष्यवाणी करा था, आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश, सभी पर मैं उंडेलूंगा, यंग एंड दी ओल्ड पर, स्त्री और पुरुष पर, हरेक पर उंडेल दूंगा। अभी ये पतरस भी चेलों के साथ पवित्र आत्मा से भर गया। क्या प्रचार किया, ओनली प्रचार हुआ उसका। अभी साइंस वंडर्स मिरेकल नहीं किया एक्स चैप्टर 2 में। एंड 3000 पीपल वर बैप्टाइज्ड। वाओ, देखो ना वर्क ऑफ द होली स्पिरिट। देखो ना वही ऑर्डिनरी, इग्नोरेंट, सिंपल लोग ना अभी प्रचार कर रहे हैं। मतलब प्रचार में इतनी सामर्थ है। जब गॉस्पल प्रचार कर दिया और जब बिलीव किया लोगों ने, उनके हृदय छिद जाते, मन फिराया और बैप्टिज्म भी ले लिया था वहां पर। यह होली स्पिरिट है। पवित्र आत्मा कार्य करना शुरू कर दिया। ये तो स्टार्ट हुआ था होली स्पिरिट का। देखो जब लॉ माउंट साइनाई पर मूसा के द्वारा परमेश्वर ने दिया, वहां पर तो 3000 लोगों की मृत्यु हो गई। पर यहां पर जब होली स्पिरिट उंडेला गया, 3000 पीपल बिलीव। सो वी गॉट टू बिलीव इन द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। मैं कितना अच्छा प्रचार करता उस पर मेरा भरोसा नहीं रहेगा, पर पवित्र आत्मा काम करेगा ना। पवित्र आत्मा उसके हृदय को छेद देता। आगे चलकर पतरस और ये जॉन और बाकी चेलों ने तो चिन्ह चमत्कार, वो जन्म के लंगड़े व्यक्ति को कह दिया उठ खड़े हो जा, चंगा हो गया। अंधे भी चंगे हो गए, जेल सेल्स भी सब खुल गए, डेड पीपल भी रेज्ड हो गए। मतलब वही काम जो यीशु कर रहा था, अब ये चेले भी करना चालू कर दिए थे ना। इसलिए यीशु मसीह ने कहा था लूक 24:49 वचन में, एंड बिहोल्ड आई सेंड द प्रॉमिस ऑफ माय फादर अपॉन यू, बट टैरी ye इन द सिटी ऑफ जेरूशलम until ye be endured ना with power from on high। हिंदी में पढ़ देंगे प्लीज। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। यीशु मसीह ने बोला है, ये बाप का प्रतिज्ञा, प्रॉमिस है। मेरा पिता कुछ बोलता है
ना तो वो पूरा भी करता है. इट इज अ प्रॉमिस कि आई विल पोर आउट माई स्पिरिट अपॉन ऑल फ्लैश, एवरीबडी. मैं सरमन के एंड में प्रेयर भी करूंगा और ये मेरी प्रार्थना है, प्रभु आपके घर में हरेक को पवित्र आत्मा उंडे, हरेक को आत्मा से. ये बाप का प्रतिज्ञा है, प्रॉमिस ऑफ द फादर है ना, कि ऊपर की सामर्थ until ye be endued with power from on high, means to be clothed with, to be arrayed or be dressed up or be equipped with. ऊपर की सामर्थ से ना तुम परिपूर्ण हो जाओ. ये परमेश्वर का एक सपना था चर्च का. ये जो फ्रेज यीशु मसीह ने लिया, स्वर्ग की सामर्थ ना पाओ ना, ऊपर की सामर्थ जब तक ना मिले, इट मीन्स सुपरनेचुरल पावर, supernatural power, not earthly power, ना, not earthly but heavenly power. परमेश्वर चाहता है चर्च टू बी इक्विप्ड विथ सुपरनेचुरल पावर, ना earthly power नहीं. earthly power can include money power, intellect power, ना इन्फ्लुएंस पावर, विजडम, माइट, ये सब दुनिया की सामर्थ है. दौलत, धन, पैसा, इन्फ्लुएंस, पहुंच, पहचान, ना ये सब दुनिया की सामर्थ पर बहुत सारे लोग भरोसा करते हैं. पर परमेश्वर चाहता है चर्च तो ऊपर की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए. देखो, दुनिया की सामर्थ अच्छी होती है पर दुनिया की सामर्थ लिमिटेड होता है. कितने बार डॉक्टर भी हाथ उठा लेता है ना, कितने बार रुपया पैसा भी फेल हो जाता है, परंतु ऊपर की सामर्थ काम करेगी. ये सुपरनेचुरल पावर है. सुपरनेचुरल, द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ द वर्ड सुपरनेचुरल सेज सम फोर्स बिहाइंड साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग और द लॉज ऑफ नेचर कैन नॉट बी एक्सप्लेन टू ह्यूमन माइंड नॉर रीजन. हिंदी में कहता हूं, जैसे कि कुछ शक्ति जो वैज्ञानिक समझ या प्राकृतिक के नियमों से परे है, या तो कुछ शक्ति जो मानव मन को समझाया नहीं जा सकता है और न ही तर्क किया जा सकता है. दैट इज सुपरनेचुरल पावर. यह पावर परमेश्वर चाह रहा था कि चर्च और बिलीवर्स ऊपर की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए, ना कि वो वैज्ञानिक सामर्थ के बाहर है. कैसे अंधा देखेगा नहीं पता, कैसे मुर्दा जीवित हो जाएगा नहीं पता, ना देखिएगा. ये दिनों में जरूर आप और मैं और हमारा चर्च भी पूरा लगा है. हम भूखों को रोटी खिला रहे हैं, ना किसी की हम सहायता कर रहे हैं. आर्थिक फाइनेंशियल हेल्प भी हमारा चर्च इन्वॉल्व है और मैं सभी का बहुत धन्यवाद देता हूं. ना हमने कुछ PPE किट्स भी बांटा है, पुलिस डिपार्टमेंट में मास्क भी बांटा है. ना वी आर ऑल ट्राइंग टू हेल्प. ना ये तो और भी लोग करते जा रहे हैं, ना बाकी लोग भी जो दुनिया के भी लोग हैं सब, और करना भी चाहिए. जो गरीब है, दुखित है, परंतु एक अर्थली पावर से हेल्प करना अलग बात होता है, पर सुपरनेचुरल पावर, वो पावर जो दुनिया की सामर्थ नहीं कर पाएगी, परमेश्वर यह चाहता है. इसलिए जब हम कुछ अनाज भी बांटते हैं, किसी को कुछ सहायता, लेट अस प्रे कि उनके लाइफ में एक कंप्लीट टर्न अराउंड, बंधन तोड़े जाए ना, वो उनके लाइफ में चंगाई उतर आ जाए, छुटकारा मिल जाए. परमेश्वर यह चाह रहा है. पेंटिकॉस्ट डे में होली स्पिरिट उंडेलने का मतलब यही है कि हम जो प्राकृतिक दुनिया में तो रहते हैं परंतु अलौकिक सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए ना. वी आर लिविंग इन द नेचुरल वर्ल्ड इन दिस रेल, पर सुपरनेचुरल पावर हमारे भीतर, हमारे द्वारा इस दुनिया संसार में कार्य करने पाए ना. ये परमेश्वर चाहता है. और खासकर पेंटिकॉस्ट के दिन में न्यू टेस्टामेंट चर्च का बर्थडे हो रहा है. होली स्पिरिट उंडेल रहा है. इनका रूप, रंग, ढंग सब कुछ बदल जा रहा है, सब कुछ बदल. इसलिए लूक 24:49 को रिपीट करते जाओ. ये यीशु का वचन है. यीशु मसीह ने बोला, ये पिता का प्रतिज्ञा, बिहोल्ड आई सेंड द प्रॉमिस, आई सेंड. अब वो भेजने के मोड में भेज रहा है. पवित्र आत्मा उंडेल रहा है. ये पिता की इच्छा है कि आप ऊपर की सामर्थ से परिपूर्ण हो जाए ना. फिर से पढ़ देंगे वर्स लूक 24:49 वचन. और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो. इसलिए यीशु मसीह कह रहा है ना, अब वो पवित्र आत्मा की सामर्थ उसने उंडेला है हमारे बीच में. अब हमको ग्रहण करने की जरूरत.
जॉन चैप्टर 14 वर्स 16 में यीशु मसीह ने कहा ना, एंड आई विल प्रे द फादर एंड ही विल गिव यू अनदर कंफर्टर दैट ही मे अबाइड विथ यू फॉर एवर। हिंदी में पढ़ दे। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। यीशु मसीह यहां पर बोला आई विल प्रे। और हम जानते हैं जब 40 वाला दिन यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया गया, उसने पिता के दाहिने हाथ खड़े होकर के उसने पवित्र आत्मा को ग्रहण किया और कलीसिया पर उंडेल दिया ना। यीशु मसीह अभी उंडेल रहा है। अभी आप और मुझको रिसीविंग मोड में आ जाना है, ग्रहण करना है। जैसे कि आपको चंगाई कैसे मिली? आपने विश्वास से ग्रहण किया ना, आपने रिसीव किया। आपका उद्धार, सैल्वेशन, पापों की क्षमा कैसे मिली? आपने विश्वास से ग्रहण किया। वैसी पवित्र आत्मा भी आप ग्रहण करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं पवित्र आत्मा पाने के लिए क्या करना है, नंबर 1 स्टेप, नंबर 2 और 10 स्टेप्स को। अरे भैया, विश्वास कर लो यीशु मसीह पर। आज प्रभु पवित्र आत्मा से हमको भर देगा, ये इच्छा भी है उसकी। वी आर प्रेइंग अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द फादर कि प्रभु मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को होली स्पिरिट से भर दे लो। अलौकिक सामर्थ, ऊपर की सामर्थ से भर देंगे ना। उसके लिए हमको रिसीविंग मोड में आना है ना, कुछ ग्रहण करने के लिए अपने आप को तैयार करना है ना। अगर किसी को, हमने भिखारी को कुछ 2 रुपये दान भी दिया तो उसको हाथ तो बढ़ाना पड़ेगा ना, रिसीविंग मोड में आना पड़ेगा। आज हम लोग रिसीविंग मोड में, बाय फेथ आई रिसीव द पावर ऑफ द होली स्पिरिट। जो परमेश्वर ने कलीसिया के लिए रखा है उसको हम लोग विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं। एक वचन पढ़ूंगा जॉन चैप्टर 14 में and verse 12 में, John 14:12, verily verily I say unto you, he that believeth on me, the works that I do, he shall do also, and greater works than these shall he do, because I go unto my Father। हिंदी में पढ़ देंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो मुझ पर विश्वास रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ वह भी करेगा, वरन इनसे भी बड़े काम करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। ये यीशु मसीह का सपना है ना कि जो काम यीशु कर रहा है वो काम आप भी करने पाए, हमारे बच्चे भी करने पाए, और ऐसा होगा हमारे बीच में। ये हमारा विश्वास है ना। ही दैट बिलीवथ ऑन मी, पर विश्वास करना है। सच सच कहता हूं, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, वो काम जो मैं कर रहा हूं वो काम तुम भी करोगे। एक वचन यीशु मसीह ने कह दिया, जॉन 7:37 में कहता है, इन द लास्ट डे, दैट ग्रेट डे ऑफ द फीस्ट, जीसस स्टूड एंड क्राइड सेइंग, इफ एनी मैन थर्स्ट, let him come unto me and drink. He that believeth on me, as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water। हिंदी में पढ़ देंगे। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यीशु मसीह ने कहा, अगर जो कोई प्यासा है, पहले प्यास लगना चाहिए। यस, आई एम सो हंग्री। आज प्यास बढ़ाओ, आज पवित्र आत्मा से भरने, प्रभु मेरे घर को पवित्र आत्मा से भर दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? 38 वचन में, जो कोई विश्वास करेगा ना, तो जैसे पवित्र शास्त्र लिखा है, उसके पेट से, अंदर से जीवन के जल के नदी निकलेंगे ना। सो इसलिए आज हम लोग विश्वास करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं ना, आप विश्वास करेंगे, अभी पवित्र आत्मा उंडेला जाएगा, पवित्र आत्मा से प्रभु भर देगा। मेरा विश्वास, जब आप वचन भी सुन रहे, आपके अंदर में अंगार हो रहा है ना, कुछ छुप रहा है आपके अंदर में ना, पवित्र आत्मा ठहरा है, आपके दिल के द्वार पे खटखटा रहा है, आपका जीवन बदल देगा। आपके द्वारा परमेश्वर पराक्रमी और बड़े बड़े काम वो करना चाहता है ना। इसलिए ये पेंटिकॉस्ट के दिन में हम लोग परमेश्वर का धन्यवाद दें। ये गॉड का प्लानिंग है, परमेश्वर जानता था क्या परिस्थिति बीतने वाली है कलीसिया में ना, और उसके लिए उपाय रख दिया थ्रू द होली स्पिरिट। द आंसर वाज द होली स्पिरिट ना। कई बार मरियम को भी नहीं समझ रहा था वो कैसे गर्भ धारण करेगी, परंतु आंसर वाज द होली स्पिरिट। ये चर्च कैसे बढ़ने वाला है
ना, कैसे सुसमाचार होने वाला? आंसर इज द होली स्पिरिट, होली स्पिरिट। और वो परमेश्वर आप पर, मुझ पर, हर एक पर उंडेलना चाहता है। मैं प्रार्थना में जाऊंगा। आइए अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए ना, और अपने आप को हम तैयार करेंगे। अभी पवित्र आत्मा से प्रभु आपको भरना चाहता है। लेट अस प्रे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जब हर एक आंख बंद है, हर एक सिर झुका है, आज हम लोग लूक 24:49 बाप का प्रतिज्ञा के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर, ये आपका प्रॉमिस है कि हर एक पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा लॉर्ड, ऊपर का सामर्थ्य उंडेलूंगा। पिता, जब लोग अभी विश्वास कर रहे हैं प्रभु, अभी उनको आप पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर दे लॉर्ड प्रभु। आत्मा का अभिषेक उंडेल पिता प्रभु, आत्मा की सामर्थ्य से भर दे लॉर्ड पिता प्रभु। उनके जीवन के द्वारा वो होने दे जो आज तक नहीं हुआ प्रभु। हम और कुछ चीज़ों के लिए प्यास और भूख नहीं है ये समय प्रभु, सिर्फ पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा हमें प्यास लगी है। एज अ चर्च लॉर्ड, एवरीबडी जस्ट प्रे फॉर योर हाउस, जस्ट प्रे फॉर योर फैमिली। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ यस लॉर्ड, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। ओ रिदा रबोदा नारा शख्याता रे दा नारा शख्याता रबा रोदा ने रे दा नारा खेरे दा नारा बा दे रे सारा दा नारा बा रे दे नारा शोखोता रे बा दा नारा बा। हर एक पर उंडेल रहा, हर एक पर उंडेल रहा, हर एक पर उंडेल रहा लॉर्ड। अलौकिक सामर्थ्य, सुपरनेचुरल सामर्थ्य है लॉर्ड। हालेलुया। ये समझ के परे है लॉर्ड, ये साइंटिफिक नॉलेज के बाहर है पिता। ऊपर की सामर्थ्य से भर दे लॉर्ड, भर दे लॉर्ड, भर दे लॉर्ड। हर एक को भर दे, हर एक को भर दे लॉर्ड। हालेलुया लॉर्ड। हर एक के प्रभु जी जीवन के ऊपर से शैतान के बंधनों को तोड़ देते, क्योंकि अभिषेक, आत्मा का अभिषेक बंधनों को तोड़ देता, बंधनों को तोड़ देता, रोग बीमार को चंगा कर देता है। राइट नाउ लॉर्ड, राइट नाउ लॉर्ड, वी स्पीक वर्ड्स ऑफ डिलीवरेंस लॉर्ड, वर्ड्स ऑफ हीलिंग टू देयर लाइव्स एंड बॉडीज इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। आज डे ऑफ रिजॉइसिंग है, अ डे ऑफ डिलीवरेंस है, अ डे ऑफ विक्ट्री है लॉर्ड पिता। हम धन्यवाद देते, धन्यवाद देते हर एक के घर में, हर एक के लाइफ में लॉर्ड पिता प्रभु। जहां जहां ये वचन जा रहा है पिता परमेश्वर, हम आजादी, 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 छुटकारा बोलते हैं, यीशु के नाम से बोलते हैं लॉर्ड पिता परमेश्वर प्रभु जी। हम धन्यवाद और धन्यवाद देते हर एक घर को प्रभु, यंग एंड दी ओल्ड को, बच्चों को, सन्स एंड डॉटर्स पर, हर एक पर प्रभु जी तूने भरा है। हम धन्यवाद देते, आत्मा की सामर्थ्य से भर दिया पिता। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर प्रभु। धन्यवाद हर एक पर प्रभु, तेरा आशीष का हाथ इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते। प्रार्थना यीशु मसीह के प्यारे मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और यीशु मसीह का अनुग्रह आज से यीशु मसीह आने तक हर एक मसीह भाई बहन के साथ सदा के लिए होते रहे, आमीन, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।